السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اليوم يوم الاثنين 28 ذی القعدہ 1443 ہجری. آج پیر کا دن ہے جس کو سوموار بھی کہا جاتا. جون کی 27 تاریخ 2022. انشاءاللہ ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں. آج سورہ اعراف آیت نمبر 168 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا زمین میں گروہ در گروہ، یعنی گروہ گروہ بنا دیا. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ تو ہے نیکوکار، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ جو اس کے علاوہ ہے یعنی گنہگار ہے. وبلوناہم، اور ہم نے انہیں آزمایا، بالحسنات والسیئات، برائی اچھائی کے ذریعے سے بھی اور برائیوں کے ذریعے سے بھی. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، لوٹ آئیں. یعنی اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے بارے میں بات چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے جو سو زمین میں گروہ گروہ بنا دیا، اور ان میں سے کچھ تو ہے جو کہ نیکوکار ہے اور کچھ تو ہے اس کے علاوہ یعنی گنہگار ہے. اور ہم نے جو سو نے آزمایا نیکیوں کے ذریعے سے، بھلائیوں کے ذریعے سے بھی اور برائیوں کے ذریعے سے بھی، یعنی انہیں آسانی دے کر، انہیں جو سو اللہ کی نعمتیں دے کر بھی آزمایا، اور انہیں تکلیفیں دے کر، مصیبتیں دے کر بھی آزمایا تاکہ وہ رجوع کرے. تو دیکھیں دونوں، سب سے پہلے تو بات کیا ہے کہ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، اور اسی طریقے سے جو سو بھلائی اور نقصان، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ نیکی اور برائی یعنی بدائی، خوشحالی اور تنگ دستی اور اس طریقے سے جو آزمایا. سبب کیا ہے؟ تاکہ وہ پلٹ آئیں. مطلب کیا ہے؟ دونوں میں بھی اللہ کے طرف سے جو سو خیر کا ہی پہلو ہوتا ہے اپنے بندوں کے لیے. وہ اس طریقے سے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو نوازے تو وہ اس کے شکر گزار بن جائیں اور اس کے سامنے اس کے طرف پلٹ آئے. یا کبھی جو سو انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اور جو سو تکبر اور غرور میں پھنس جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر لے، تھوڑا ان کو تکلیف دے، ان کو مصیبت میں ڈالے، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. تو دونوں بھی مقصد جو سو اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتا ہے. یہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہماری سوچ جو سو چھوٹی سوچ ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے نیکیاں کر لیا، ہم بہت بڑے نیک انسان ہیں، بزرگ انسان ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کی انعام ہمارے اوپر ضروری اور لازم ہی تھا. اور اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے تھے کیا، ہم پر ہی مصیبت آنی تھی کیا، ہم کو کیوں مصیبت آ رہی ہے، ہم نے کون سا گناہ کیا. تو اس طریقے سے ناشکری کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں حالت میں اللہ کی طرف سے بندوں پر رحم کا ہی فیصلہ ہوتا ہے تاکہ وہ لوٹ آئے. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر نعمتیں ہیں تو ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں اور اس کے اور زیادہ جو سو وفادار بندے بننے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں تو بھی جو سو اللہ سے جو سو اپنی گناہ اور غلطیوں کی معافی چاہیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرے. تو اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بھی ہم نے جو سو گروہ گروہ میں بانٹ دیا تھا. کچھ تو لوگ تھے نیکوکار تھے، کچھ برے تھے، اور ہم نے ان کو بھلائی کے ساتھ بھی اور تکلیفیں دے کر بھی آزمایا تاکہ وہ جو سو رجوع کر لیں. وخلف من بعدہم، پھر آئے ان کے بعد خلف، ناخلف لوگ، ورث الکتاب، جو کہ وارث ہوئے کتاب کے، یاخذون ارضا، وہ لے لیتے تھے فائدہ، حاذ الادنا، اس ادنا زندگی کا یعنی دنیا کا فائدہ. وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں سیغفر لنا، ان قریب اب جو سو ہمیں بخش دیا جائے گا. وَإِنْ يَأْتِهِمْ أَرْضٌ، اور انہیں دیا جائے اور ایسے ہی مال و فائدہ دنیا کا، مثلہ، اس کے مثل، یاخذوہ، وہ اس کو لے لیں گے. علم یؤخذ، کیا وہ انہوں نے نہیں لیا گیا تھا ان سے، علیہم، ان پر، میثاق الکتابی، عہد کتاب میں، ان لا یقولوا علی اللہ، کہ تم نہیں کہنا اللہ پر، الا الحق، سوائے حق کے، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھ لیا تھا، انہیں پڑھا دیا گیا تھا جو کچھ اس میں ہے. والدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو کہ پرہیزگار ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں.
उनके बाद फिर ऐसे नाखलफ लोग जो सो वारिस बने किताब के, जो कि दुनिया का फायदा यानी आरिज़ी फायदा, जो जल्दी का फायदा है उसको ले लेते हैं और कहते हैं कि अब हमें जो सो बख्श दिया जाएगा, और अगर उन्हें दुनिया का फायदा और भी मिल जाए तो फिर वो भी ले लेंगे। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या हमने उनसे अहद नहीं लिया था किताब में कि तुम अल्लाह पर जो सो सिवाय हक के कोई और बात नहीं कहोगे, और ये कि उन्हें पढ़ा दिया गया था जो कुछ उसमें था, और ये कि दार आखिरत का घर जो है वो सबसे बेहतर है उन लोगों के लिए जो कि तकवा इख्तियार करते हैं। क्या तुम समझते नहीं? यानी अब बनी इसराइल में जो सो पहले अल्लाह ताला ने उनके कुछ लोगों को जो सो नेक बनाया, कुछ लोगों को बुरा बनाया, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके बाद फिर ऐसे लोग जो सो किताब के वारिस हुए जो कि नाखलफ थे, यानी बहुत बुरे लोग, बुरे किस्म के लोग थे, और उन लोग क्या करते थे, हमेशा उनकी फिक्र और सोच जो सो दुनिया के फायदे की हुआ करती थी, दुनिया हासिल करने की हुआ करती थी, और उस पर से जो सो उम्मीद और फख्र क्या था कि हम तो बख्शे जाएंगे। जरा गौर से सुनिएगा, आज हमारे मुसलमानों की भी हालत कुछ ऐसे ही है, यानी दुनिया का फायदा, हमेशा उनकी फिक्र और सोच जो सो दुनिया और दुनिया के बारे में और दुनिया के मता हासिल करने के लिए ही हुआ करती थी, और ऊपर से जो सो गुमान और जो सो ये उम्मीदें क्या होती थी कि हम बख्श दिए जाएंगे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर उनको और ऐसा ही दुनिया का माल और दौलत दे दिया जाए तो वो भी ले लेंगे। फिर उनको जो सो क्या उनको जो सो नहीं कह दिया गया था, किताब में उनसे अहद नहीं लिया गया था कि वो अल्लाह के ऊपर सिवाय हक के कुछ और बात नहीं करेंगे, और ये कि जो सो उन्हें सिखा दिया भी गया था कि जो सो आखिरत का घर सबसे बेहतर है तकवा इख्तियार करने वालों के लिए। क्या वो अक्ल नहीं रखते? मतलब क्या है कि उनकी सोच और फिक्र तो सिर्फ दुनिया और दुनिया के फायदे की ही है, और उम्मीदें क्या है कि आखिरत में वो बख्श दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका हाल ये है कि और अगर दुनिया में उनको और माल और दौलत मिल जाए तो और वो माल और दौलत भी ले लेंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद क्या करते हैं, क्योंकि उनकी हकीकत और हकीकी फिक्र और सोच तो कभी आखिरत कमाने की, आखिरत की थी ही नहीं। हमेशा से उनकी सोच और फिक्र जो सो दुनिया और दुनिया के फायदे की थी, और ऊपर से उम्मीद और जाम ये था कि हमको बख्श दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इन्हें जो सो बताया नहीं गया था, उनसे वादा नहीं लिया गया था किताब में कि वो अल्लाह पर हक के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मतलब क्या है कि जो ये कह रहे हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे, तो ये दर हकीकत में अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं और अपनी आरजुएं और बेकार की उम्मीदें, तमन्नाएं रखे हैं, जो कि अल्लाह ताला इनके तमन्ना के मुताबिक ऐसा हरगिज नहीं करेगा। क्यों? कि ये कभी दुनिया में इनको आखिरत की फिक्र ही नहीं थी, आखिरत हासिल करने के लिए कभी कोशिश ही नहीं किए थे, आखिरत के काम, आखिरत को संवारने के काम तो नहीं किए थे, दुनिया और दुनिया की फिक्र ही रहती थी, और उम्मीद ये करते हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे। तो ये तो खाम ख्याली है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो कहते हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे, दर हकीकत में अल्लाह पर नाहक बात कह रहे हैं। क्यों? कि अल्लाह ताला उन्हीं को बख्शता है जो कि आखिरत की फिक्र करते हैं, आखिरत के लिए कोशिशें करते हैं, और दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर कुर्बान कर देते हैं। अगर दुनिया एक तरफ उनको दुनिया का फायदा हासिल हो रहा हो और दूसरी तरफ आखिरत का फायदा हासिल हो रहा, तो दुनिया के फायदे को कुर्बान कर देते हैं आखिरत के मुकाबले में। तो ये तो करते नहीं है ये, और दुनिया में और दुनिया मिल जाए तो और ले लेंगे, और ये फिर अल्लाह पर ये उम्मीदें लगाए रखे हैं कि अल्लाह ताला इनको बख्श देगा। तो ये दर हकीकत में झूठ बात है, झूठी ख्वाहिशात है जो ये कर रहे हैं। तो आज जरा मुसलमानों का हाल देख लें, हमारा हाल, हम में से खुद हम अपने अपने गिरेबानों में झांक के देख लें कि हमको आखिरत की कितनी फिक्र है, हमने कितनी मर्तबा दुनिया को कुर्बान किया है आखिरत के गरज के खातिर, आखिरत को हासिल करने के लिए, दुनिया के आराम को, दुनिया के फायदों को, दुनिया के जो सो लहू और लैब के जो चीजें हैं उन तमाम को हमने आखिरत हासिल करने के लिए कितनी मर्तबा हमने कुर्बान किया है। बल्कि 100वां मर्तबा ये हाल होगा हमारा कि हम आखिरत को जो सो दुनिया के ख्वाहिशात के लिए कुर्बान कर रहे होते, आखिरत के भले को, आखिरत की भलाई को, आखिरत के बड़े बड़े अजर को जो सो हम दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए कुर्बान कर रहे होते। कभी झूठ बोल दिया, कभी धोखा दे दिया, कभी किसी का माल हड़प लिया, कभी किसका नुकसान कर दिया, किसी की कहीं पर गीबत कर दी, कहीं पर चुगली कर दिया। गीबत, चुगली, झूठ बोलकर क्या हासिल होगा? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा इंसान को अपनी दिल को तसल्ली मिलेगी, कभी किसी के खिलाफ भड़ास मिल जाएगी, खुश हो जाएगा। और जो सो खास तौर पे दो लोग जब बात करते हैं तो तीसरे के बारे में इस तरीके से बात करते हैं कि वो
चुगली या गीबत हो रही होती उसकी, लेकिन इसमें होता क्या है, एक दूसरे से खुश हो रहे होते कि हमने फलां के बारे में, तो दुनिया का थोड़ा सा फायदा हुआ, लेकिन इसके बदले में हमने क्या किया, आखिरत को कुर्बान कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने वईदें बयान किया है, चुगली के बारे में, गीबत के बारे में, झूठ बोलने के बारे में, लोगों को धोखा देने के बारे में, लोगों का माल हड़प लेने के बारे में, लोगों को नाहक तौर पर ईजा पहुंचाने के, उनके हक मारने के बारे में, फिर उसी तरीके से जो सो दुनिया हासिल करने के लिए दीन को छोड़ देना, दुनिया के थोड़े से आराम और फायदे के लिए अल्लाह की इबादतों से एराज करना, या फिर हराम और हलाल की फिक्र नहीं करना, या जो सो हराम में मुब्तला तो होते रहें और ख्वाहिश और उम्मीद क्या हो कि अल्लाह ताला हमको जन्नत में डाल देगा, हम तो मुसलमान हैं, जन्नत में चले जाएंगे, हम तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, आखिरत की फिक्र कोई नहीं है, आखिरत के लिए कोशिशें कोई नहीं है, लेकिन उम्मीदें क्या हैं कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला गफ्फार है, और इस तरीके से तो अल्लाह ताला जहाँ पर गफ्फार है, रहीम है, रहमान है, वहीं पर सत्तार भी है, वहीं पर ख़ार भी है, वहीं पर ज़बरदस्त भी है, वहीं पर जो सो इंसाफ करने वाला भी है, वहाँ पर ज़बरदस्त और जल्द हिसाब लेने वाला भी है। तो ये सब कुछ भूल जाते हैं और दुनिया में जो सो हम अल्लाह की तरफ, अल दीन की तरफ जाने के लिए कोई मेहनत और मशक्क़त नहीं करते हैं और उम्मीदें लगाते हैं कि अल्लाह ताला हमको माफ़ कर देगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बनी इसराइल के और पहले लोगों के बारे में कह रहे हैं कि वो ऐसे नाखलफ लोग पैदा हुए जो दुनिया के फायदे के पीछे दौड़ते थे, आखिरत की फिक्र नहीं करते थे और फिर जो सो उम्मीदें रखते थे कि अल्लाह ताला हमको बख्श देगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इनसे आहद नहीं लिया गया था किताब में कि ये अल्लाह पर हक के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो ये जो उम्मीदें लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमको बख्श देगा, ये दर हकीकत में नाहक बात है जो अल्लाह पर कह रहे हैं। तो आज हम मुसलमानों में से भी अक्सरियत का कुछ मामला ऐसा ही है। तो अगर हम दुनिया में ये ख्वाहिशात कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है ना कि अगर कोई इंसान जो सो करेले का दरख्त लगाए और उम्मीद करे कि उसको आम या कोई और मीठा फल मिलेगा, तो उसके खाम ख्याली है, जो फल उसने, जो दरख्त उसने लगाया वही फल उसका काटेगा। तो दुनिया में जो इंसान आखिरत की फिक्र नहीं किया है, आखिरत के लिए कोशिश नहीं किया है और ये उम्मीद करता बैठा रहा है कि अल्लाह ताला बख्श देगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा, तो ये उसके खाम ख्याली है। तो इस इंसान को चाहिए कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करे, आखिरत के लिए मेहनत करे, दुनिया को कुर्बान कर दे आखिरत के लिए। हाँ, आखिरत को चाहते हुए दुनिया को हासिल करने की कोशिश करें, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यानी फिक्र हमारी हमेशा आखिरत की हो और आखिरत को चाहते हुए दुनिया उसके तहत में, उसके अंदर में रहते रहते दुनिया हासिल करें। आज हमारा हाल क्या है, हम दुनिया की ही फिक्र सुबह से लेके शाम तक, पैदा होने से लेके मरने तक हमारी फिक्र सिर्फ और सिर्फ दुनिया है और फिर उम्मीद क्या करते हैं कि आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत में डाल देगा, जन्नत में चले जाएंगे और बल्कि क्या कुछ हमने उम्मीदें रखा है। तो ये गलत उम्मीदों को निकालना है और कोशिशें और फिक्र और मेहनत जो सो आखिरत के लिए होनी चाहिए। हाँ, आखिरत की फिक्र करते करते अल्लाह ताला ने भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो उभारा है कि दुनिया को मत भूलो, दुनिया में जब जी रहे हो तो दुनिया में जो जीने के लिए जो जरूरत की चीजें उसको भी लेना है, जीना है तो कमाना भी है, खाना है तो कमाना है। तो इस तरीके से बहरहाल, लेकिन शरीयत के हुदूद में हो और हमेशा जो सो आखिरत की फिक्र ज्यादा हो दुनिया के मुकाबले में। वल्लज़ीना युमस्सिकुन्ना, और जो लोग जिन्हें जो सो मजबूती से जिसको पकड़ वो लोग जो कि मजबूती से पकड़ते हैं किताब को, व अक़ामुस्सलाता, और कायम करते हैं नमाज को, इन्ना ला नुज़ियु, बेशक हम ज़ाय नहीं करेंगे, अजरल मुस्लिहीन, अजर इस्लाह करने वालों की, नेकोकारों की। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो लोग जो कि मजबूती से किताब को मजबूती से पकड़ते हैं और नमाजों को कायम करते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला ज़ाय नहीं करता है अजर नेकोकारों का। तो ये तो अल्लाह का इंसाफ है। यानी जो मजबूती से किताब को पकड़ते हैं, मतलब क्या है, किताब के अहकामात को हाथ में मजबूती से पकड़ना नहीं है, किताब को समझना है, समझकर उस पर अमल करना है मजबूती के साथ। जो अल्लाह ने किताब में अहकामात बयान किए हैं, जो करने का हुक्म दिया है उसके ऊपर जो सो हत्तल इम्कान उसके ऊपर बचा लाए, और जिससे रुकने का हुक्म दिया है हत्तल इम्कान उससे रुकते रहें। ये मतलब है किताब को मजबूती से पकड़ने का। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि जो लोग मजबूती से किताब को पकड़ते हैं और नमाज को कायम करते हैं, तो पता क्या चला, इबादतों में से एक अहम इबादत जो नमाज है उसके तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं कि जो नमाज को कायम करते हैं। और कभी कभी जो जुज़ को बयान कर
कामिल का मतलब होता है, यानी इबादत की एक शक्ल को बयान कर कर सारे के सारे इबादतों को कहना मकसद होता है। मतलब क्या है, नमाज से मुराद यहाँ पर वो तमाम इबादतें हैं जो कि मुसलमान के ऊपर फर्ज और ज़रूरी है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही करें कि जो लोग किताब पर मजबूती से किताब को थाम लेते हैं और अपनी इबादतों में जो सो कायम रहते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों के अजर को ज़ाय नहीं करेगा। तो पता क्या चला कि पहले अमल करें, पहले जो सो अल्लाह के अहकामात के ऊपर पाबंद रहें, उसके बाद अल्लाह से नेक उम्मीद करें। अमल तो कोई नहीं है और उम्मीदें रखेंगे तो ये तो पूरा जो सो खाम ख्याली है और जो सो बेवजह के जो सो हवा में बात करने वाली बात है। तो पहले नेक अमाल करें, फिर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमारे इन टूटे फूटे अमाल को कबूल कर ले और इसका बदला हमको जन्नत में अता फरमा दे। वइज़ नतखना जिबाला, और जब हमने उठा लिया था पहाड़ को, फौक़हुम उनके ऊपर, कअन्नहु ज़ुल्लतुन गोया कि उनके ऊपर जैसे कि साइबान के जैसे हो, कोई साए के तौर पर बादलों के जैसा हो। वज़न्नु और उन्होंने गुमान कर लिया था, अन्नहु वाक़िउम बिहुम कि वो उनके ऊपर गिर पड़ेगा। खुज़ू मा आतैनाकुम तुम पकड़ लो जो तुम्हें दिया गया है, बेक़ुव्वतिन मजबूती के साथ, बस करो और याद रखो, याद करो माफी ही जो कुछ उसमें है, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब वन सेकेंड जो सो बनी इसराइल के बारे में कहा जा रहा कि हमने उनके ऊपर पहाड़ को बुलंद कर दिया और उनको ये गुमान हो गया कि ये पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाएगा, हमारे सरों के ऊपर, हमारे बस्तियों पर गिर पड़ेगा। फिर हमने उनको कहा कि मजबूती से थाम लो जो कुछ हमने तुम्हें दिया है और ये कि तुम याद करो जो कुछ इसमें है, यानी किताब को मजबूती से थाम लो और उसमें जो कुछ नसीहतें की गई उसको मजबूत उसके ऊपर उसको याद करो, उस पर अमल करो ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। तो यहाँ पर जो सो बनी इसराइल को जब खास तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने तौरात अता किया और उसमें जो सो अहकामात थे, और उन अहकामात पर जब बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को कहा गया कि इस पर अमल करो, तो उसमें टामाटोल करने लगे वो, और उसमें जो सो इराज करने लगे और जो सो हीले बहाने करने लगे। तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पहाड़ को ऊपर उनके आसमानों में जैसे बादलों के जैसे जो पहाड़ को लाके खड़ा कर दिया, और उनको ये एहसास होने लगा, उनको वो डरने लगे कि हो सकता है ये पहाड़ जो हमारे ऊपर गिर जाएगा, हमारी बस्तियों को रौंद दिया जाएगा। और उनको इस तरीके से डरा कर अल्लाह ताला ने कहा कि जो तुमको किताब दी गई है उसको मजबूती से थाम लो और जो कुछ इसमें कहा गया है उसको याद करो और उस पर अमल करो ताकि तुम्हें तक़वा तुम तक़वे वाले बन जाओ। तो क्या पता चला, बनी इसराइल चूंकि सरकशी करते थे तो उनको डरा धमका कर अल्लाह ताला ने उनको मजबूर किया तो इस तरीके से अमल करने पर। लेकिन वो ऐसी जालिम कौम थी कि जब अल्लाह ताला ने उनको डराया धमकाया, फिर उन्होंने इकरार कर लिया कि हम जो सो वाक़ई कहा कि हम यकीनन हम जो सो अमल करेंगे, और फिर जब अल्लाह ताला ने उसको हटा दिया फिर जो सो नाफरमानी करने लगे। जैसे कि दूसरे जगहों पर भी उनके बुरे अमाल को बता दिया गया कि जब कभी अल्लाह की तरफ से उन पर कोई अजाब आता तो वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आते और कहते कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए, और जब वो दुआ करते और वो अजाब को टाल दिया जाता तो फिर वो जो सब बुराई में मुब्तला हो जाते थे। जैसे कि आज हमारा अभी हाल यही है, एक तरफ हम तौबा तौबा कहते हैं, फिर पलट कर फिर जो सो वही गुनाह में पड़ जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, जब हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हो तो सच्ची और पक्की माफ़ी मांगे, और वो इस तरीके से हो कि जिस वक्त में हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो गुनाह हमसे हुआ है उसका इकरार हो, उस पर नदामत हो। यानी सबसे पहले हम माने इकरार करें उसको, उसके यकीनन हमसे ये गुनाह हुआ है, फिर उसके ऊपर नदामत हो, फिर अल्लाह के सामने अहद व पैमान करें कि या अल्लाह हम, और सच्चे दिल से तौबा करें कि या अल्लाह आगे मैं ऐसा अमल नहीं करूंगा, ऐसी गुनाह नहीं करूंगा, फिर उसके बाद उस गुनाह को छोड़ दे। तो ये तरीका होता है बुराई से बचने का। वइज़ अखज़ रब्बुका, और जब लिया तुम्हारे रब ने, मिन बनी आदम से, मिन ज़ुहूरिहिम उनके पीठ से, उनके पुश्त से, ज़ुर्रियतहुम उनकी उनकी औलाद, वअशहदुहुम और हमने उनको गवाह बना लिया अब उन्हीं के ऊपर, अला अनफुसिहिम उनके अपने नफ्सों पर, अलस्तु बिरब्बिकुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क़ालू बला उन सब ने कहा हाँ क्यों नहीं, शहीदना हम गवाह है, अन तक़ूलू ये कि तुम कहो, यौमल क़ियामत क़यामत के दिन, इन्ना कुन्ना अन हाज़ा बेशक हम तो थे इससे गाफिलीन गाफिल।
यानी अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, जरा गौर से सुनिएगा। और हमने जब बनी आदम से जो सो बनी आदम को से अहद लिया, जब आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से हमने जो सो उन तमाम को निकाला, उनकी ज़ुर्रियत को निकाला और हमने उनको गवाह बनाया खुद उनके नफ्सों के ऊपर, और हमने उनसे सवाल किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा खालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं, यकीनन आप हमारे रब है, शहीदना हम गवाही देते हैं। और उसके बाद तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने ये गवाही इसलिए ली कि कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम कहो कि हम तो इस बात से गाफिल थे, यानी अल्लाह तो हमारा रब होने के बारे में हम तो तुझसे गाफिल थे, ये उज़र ना पेश करो तुम। इस वजह से हमने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी तमाम जो इंसानियत जो औलाद होने वाली थी क़यामत तक, उन तमाम को निकाला और निकाल कर उनको अल्लाह ने अपने सामने जमा किया। अब ये कैसा है, ये आलम अलस्त इसको कहा जाता है, अहद अलस्त, यानी अलस्त का अहद, अहद व पैमान जो हम हर इंसान ने, हर बनी आदम ने अलस्त में, आलम अलस्त में किया है। अलस्त में मतलब अरवाह, जो आलम अरवाह जिसको कहा जाता है, जो रूहों की जो आलम थी, उस आलम में हर इंसान, जो इंसान पैदा होने वाला था, आदम की जो औलाद पैदा होने वाली है क़यामत तक, उन तमाम की रूहों को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से उन तमाम को निकाला और अपने सामने जमा किया। उन तमाम को अपने सामने फैला कर अल्लाह ताला ने उन तमाम से पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब के सब ने, आपने, हमने, काफिरों ने, मुशरिकों ने, यहूदियों ने, नसारा ने, हर इंसान ने, हर जो क़यामत तक जो पैदा होने वाले हैं, हर एक की रूहों ने जो सो अल्लाह के सामने गवाही दी, कहा कि बला शहीदना, हाँ हमारे रब जरूर, क्यों नहीं, शहीदना हम गवाही देते हैं, यानी उन्होंने अपने आप पर गवाही दी और उन्होंने कहा कि या अल्लाह हम गवाही देते हैं कि यकीनन तू ही हमारा रब है। किसने? मैंने, आपने, हर एक ने, मुसलमानों ने, काफिरों ने, यहूदियों ने, नसारा ने, जो जो दुनिया में पैदा होने वाले हैं, जो पैदा हो चुके हैं, जो आखिरत तक पैदा होंगे, हर एक की रूहों ने अल्लाह के सामने ये इकरार किया कि या अल्लाह हम गवाही देते हैं तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा माबूद है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने ये गवाही इसलिए लिया ताकि कल क़यामत के दिन तुम ये उज़र पेश ना करो कि या अल्लाह हम तो इससे गाफिल थे, हम तो गाफिल थे कि तू हमारा रब है, हम तो तुझको पहचानते ही नहीं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि कितने ही लोग हैं जो कुफ्र के अंदर पैदा हुए, कुफ्र में बड़े हुए, कुफ्र में वफात पा गए, बल्कि कई ऐसे महल्ले, कई ऐसे गाँव, ऐसे बस्तियां हैं, कई ऐसे मुल्क होंगे जहां पर लोगों ने जो सो उसी कुफ्र और शिर्क और बिदात के हालत में, और उसी कहीं पर कोई जो सो किसी खुदा को ही नहीं मानता है, कोई जो सो कई खुदाओं को मानता है, कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को मानता है, उसी हालत में वो पैदा हुए, उसी में बड़े हुए, उसी में मर गए। तो ये सारे के सारे कुफ्फार और मुशरिकीन जो कोई है, कल क़यामत में अल्लाह के सामने कोशिश करेंगे, अल्लाह के सामने बहाना लाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह को कहेंगे या अल्लाह हमको तो पता ही नहीं था कि तू एक अकेला है, तेरी इबादत करनी है, हमको तो इसका इल्म ही नहीं था, हम तो उसी हाल में पैदा हुए, उसी में मर गए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उसका इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत में तुम ये कहो कि हम तुझको जानते ही नहीं थे, तुझको पहचानते ही नहीं थे, तो इस उज़र को ना पेश कर सको तुम। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने बनी आदम में से हर एक से जो सो आलम अरवाह में हमने उनसे गवाही ले चुके हैं, उन्होंने हमको पहचान लिया था और उन्होंने जो सो हमारे बारे में गवाही दे दिया कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। हम गवाह देते हैं कि हम यकीनन जानते हैं, मानते हैं कि क्यों नहीं, तू ही हमारा ही रब है, तू ही है हमारा रब, और हम गवाही देते हैं। तो अब ये देने के बाद जब इंसान कुफ्र में पैदा होता है, मतलब क्या है, जरा इसको समझने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ तो कुरान गवाही दे रहा है कि हमने, आपने और हर बनी आदम ने, उसकी रूहों ने जो सो अल्लाह के बारे में गवाही दे दी और इकरार किया कि अल्लाह तू ही हमारा रब है, तू अकेला ही रब है। उसके बाद हुआ क्या, और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर बच्चा, पैदा होने वाला बच्चा जो सो अपनी फितरत पे पैदा होता है, बल्कि दीन इस्लाम पे पैदा होता है। फिर कहा उसका जो माशरा है, उसकी जो सोसाइटी है, उसके माँ बाप, उसका जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में वो आंख खोलता है, जो उसके माँ बाप को करते हुए देखता है, तो उसके बाद जो सो उस माशरे ने, उसके माँ बाप ने उसको या तो यहूदी बना देते हैं, या तो नसरानी बना देते हैं, या तो मजूसी बना देते हैं। मतलब क्या है कि जो बच्चा पैदा हुआ, चाहे किसी काफिर के घर में पैदा हुआ हो, चाहे किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ हो, चाहे किसी जू के घर में पैदा हुआ हो, चाहे किसी हिंदू के घर में पैदा हुआ हो, वो दर हकीकत में फितरत
फितरत पे पैदा होता है, और वो फितरत क्या है? वही है जो अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में हर इंसान से अहद लिया था, और उन लोगों ने इकरार किया था कि या अल्लाह हम गवाही देते हैं यकीनन तू ही हमारा रब है। तो अगर उसके ऊपर दुनिया की चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करते तो वो एक अल्लाह ही की इबादत करता। लेकिन होता क्या है, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, देखता है कि उसके माँ बाप जो सो घंटी बजा रहे हैं, किसी मंदिर में जाकर घंटी बजा रहे हैं, किसी पत्थर के सामने सजदा कर रहे हैं, या किसी दरगाह के सामने जाकर जो सो सजदा कर रहे हैं, या किसी दरगाह का तवाफ कर रहे हैं, या किसी या अब्दुल कादर जिलानी या गौस अल मदद या अली अल मदद या ख्वाजा अल मदद कह रहे हैं, या कोई जो सो किसी झंडे चंड और अलम और इसके सामने जाकर झुक रहे हैं, या उनसे नजरें मान रहे हैं, उम्मीदें कर रहे हैं, तो फिर उनकी औलाद भी जब बड़े होते तो वही कुछ करने लगते हैं। और उसी तरीके से जो बच्चा जिस माहौल में पैदा होता है, जो अपने बड़ों को और माहौल में जो कुछ होते देखता है, वो उसका रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर उसी में वो ढल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ तक के लोग जो सो ढिठाई के साथ ये भी कहते हैं हम तो अपने बाप दादा को इसी तरीके पे पाया, और फिर लोग उसी तरीके पे जिंदा रहते हैं, उसी तरीके पर मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी गौर व फिक्र करने की कोशिश नहीं किया। उनके दिलों के अंदर जो तौहीद की चिंगारी जो अल्लाह ताला ने रख छोड़ा था, उसको जो सो उनके अतराफ का, उनके माहौल का, उनके माँ बाप का जो माहौल में, माशरे में जो गंदगी थी, जो पलीदी थी, उसका धूल और राख वगैरह जो इतनी उनके उस टिमटिमाते हुए दिए के ऊपर, उस चिराग की चिंगारी के ऊपर थी, इसके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि वो तौहीद तकरीबन खत्म हो चुकी थी, और फिर वो शिर्क और बिदात और कुफ्र और इन तमाम चीजों में गुमराह हो गए, उसी में फंसे रह गए, और दुनिया की फिक्र उनके ऊपर हमेशा लायक रही कि वो आखिरत के बारे में कभी सोचे नहीं, अपने रब के बारे में कभी सोचा नहीं, कभी अपने रब को पहचाना नहीं, उसी हालत में मर गए। तो फिर कल क़यामत में जब अल्लाह के सामने गवाही देंगे, अल्लाह के सामने कहेंगे कि अल्लाह हमको तो पता ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो अपने बाप दादा को, अपने बड़ों को इसी हालत में देखा, उसी में रहे। तो फिर उस वक्त में अल्लाह ताला याद दिलाएगा कि क्या तुम जो सो तुम्हारी रूह जब मेरे पास मौजूद थी तो क्या तुमने गवाही नहीं दिया था? और अल्लाह ताला उस वक्त में याद दिलाएगा। तो पता क्या चला, हम में से हर एक ने एक अल्लाह को माना है, इकरार किया है, उसकी तौहीद को गवाही दे चुके हैं। उसके बाद अगर हम फिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, फिर एक अल्लाह को छोड़कर औरों को, अल्लाह के बंदों को उसके बराबर ला के खड़ा कर देते हैं, और इबादत की जो शक्लें सिर्फ अल्लाह के लिए खास होनी थी, उनमें से कुछ शक्लों को भी अगर हम जैसे अल्लाह के अलावा के लिए कर लेना शुरू करते हैं, तो फिर हमने शिर्क का इर्तिकाब करने लगे। जो इंसान शिर्क करने लगता है, फिर उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फैसला कर चुका है कि उनको हरगिज़ मैं माफ नहीं करूंगा, अनलेस वो तौबा कर लें, वफात से पहले, मरने से पहले तौबा कर लें, या क़यामत की निशानी आने से पहले तौबा कर लें, तो फिर और बात है। वरना अगर तौबा करे बगैर दुनिया से चले गए तो जहन्नम उनका ठिकाना है, जन्नत उनके ऊपर हराम कर दी गई है। तो ये जरा इंसान दोनों चीजों को समझे तो पता क्या चला, लुबे लुबात क्या है, हम में से किसी के पास कोई भी बहाना और उज़र बाकी नहीं रहेगा कि कल क़यामत में हम बहाना तलाश कर सके, या अल्लाह के सामने कह सके या अल्लाह हम तो कमजोर थे, हम तो बेबस थे, हम तो जाहिल थे, हम तो अनपढ़ थे, हम तो जैसे पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो अरबी नहीं थे, कुरान तो तूने अरबी में जबान में नाजिल किया था, हम तो बोले उर्दू जबान जानते थे, हम तो कोई जबान जानते नहीं थे, हम तो अपने बाप दादा को जो तरीके पे पाए वो तरीके पर हम रहे, हम क्या करें, हम तो मजबूर थे। तो ये तमाम हीले बहाने और जो जो उज़र हम पेश करने की कोशिश करते हैं, बल्कि आज हमको हमारे बड़ों ने कह दिया, देखो बोले जितना इंसान कम इल्म हासिल करेगा तो उसके साथ उतना आसानी से मामला हो जाएगा। यानी लोगों को जो सो हमारे बुरे मौलवियों ने, हमारे बड़ों ने कह दिया है कि जो सो तुम दीन कुरान को तुम नहीं समझ सकते, कुरान को जो सो सीखने सिखाने की फिक्र मत करो, क्योंकि जितना तुम भोले भाले बन के जो कुछ मोटा मोटा थोड़ा बहुत मालूम है उसके ऊपर अमल करके चले जाओ, क्योंकि जितना तुम इल्म हासिल करोगे तो फिर उतना हिसाब किताब होगा। और लोगों को डरा दिया तो मतलब क्या है कि तुम जाहिल है तो जाहिल के जाहिल ही बन के रहो। इसका मतलब ये है कि हमारे बड़े हमको ये कह रहे हैं कि हम अंगूठा छाप बन के रह जाएं, हम जाहिल बन के रहे, लेकिन फिर वो दुनिया में तो हम नहीं करते हैं। हम दुनिया में, हमारे माँ बाप जाहिल थे, हमारे बड़े जो सो अंगूठा छाप थे, तो हम तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं, हम दुनिया के तमाम इल्म हासिल करना चाहते हैं, दुनिया के टेक्नोलॉजी को तो हासिल कर लेना चाहते हैं, लेकिन दीन के मामले में जाहिल के जाहिल रहना चाहते हैं। बल्कि लोग फखर से कह लेते हैं भाई हम तो जाहिल है, हमको तो पता नहीं, हम तो बोले अनपढ़ है, हम तो दीन को जो सो डायरेक्ट कुरान से नहीं समझ सकते हैं, तो लिहाजा किसी ना किसी के पीछे तो चलना पड़ेगा ना, हम तो 4 इमामों में से एक इमाम को मानना पड़ेगा ना, वो तो बरहक है ना, उनकी बात को हम तो समझना पड़ेगा ना, हमारे बड़े ने किए कहा ना, वो कहा ना, ये सब हीले बहाने
दुनिया में तो हम अपने नफ्स को खुश कर ले सकते हैं, अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह के पास ये कोई उज़र नहीं चल पाएगा, क्योंकि इंसान कोशिश तो करेगा कल क़यामत में अल्लाह के सामने इस तरीके के हीले बहाने करें, लेकिन जब इंसान इस तरीके के हीले बहाने कर रहा होगा, अल्लाह ताला उसके ज़बान पे मोहर लगा देगा, फिर उसके हाथ, उसके पैर, उसके आज़ा, उसकी जिस्म की चमड़ी जो है वो उसके खिलाफ गवाही देगी, और उस वक्त में फिर वो नादिम हो जाएगा। तो ये हालत आने के बाद वहां पर नादिम होना और कोशिशें करना, दुनिया में हम जैसे चालाकियां कर कर, हीले बहाने कर कर बचने की कोशिश करते थे, बच जाते थे, आखिरत में भी हम समझते हैं कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला जो सो इतना गाफिल है, या दुनिया वाले जिस तरीके से बेवकूफ हो बन जाते हैं, हम पता नहीं हम अपने आप को इतना चालाक समझते हैं कि अल्लाह को जो से हीले बहाने कर कर कुछ निकल जाएंगे, तो अल्लाह के पास ना कोई ऐसा हीला बहाना चलेगा, ना अल्लाह ताला इतना गाफिल है हमसे। अल्लाह ताला के पास तो सब कुछ लिखा जा रहा है, और अल्लाह ताला ने हमको पैदा करने से पहले ही हमसे गवाही ले चुका है, और अल्लाह ताला ने हमको, हमारे नफ्सों ने, हमारे रूहों ने गवाही दी है कि या अल्लाह हम गवाही देते हैं कि तू ही हमारा रब है, तू अकेला ही रब है। उस गवाही देने के बाद अपने आप पर हमने गवाही कायम कर ली है, फिर उसके बाद हम अपने आप को धोखे में रख लें थोड़ी सी दुनिया की जिंदगी के अंदर। और असल क्या है, हमको दुनिया से इतनी लगाव है, दुनिया से हमको इतनी फिक्र है कि हमको, हमारे पास इतनी तवज्जो ही नहीं है, हमारे पास इतनी फिक्र ही नहीं है, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम कुछ वक्त जो सो दीन सीखने सिखाने के लिए लगाएं। हम दुनिया में क्या है, दुनिया बटोरने के चक्कर में है। अगर हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, और अगर हमको हमारे जो एम्प्लॉयर है अगर वो कहते हैं कि 2 घंटे तुम और ज्यादा ड्यूटी करोगे तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, हम कहेंगे कि 10 नहीं 12 घंटे नहीं 14 घंटे भी मैं करूंगा। हम दुनिया में जो सो ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दुनिया कमा ले सके, लेकिन हमारी फिक्र ये नहीं होती है, बल्कि हकीकत क्या है कि चाहे तुम सर नीचे कर लो पैर ऊपर कर लो, 8 घंटे के जगह 16 घंटे की ड्यूटी कर लो, तुम मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख रखा है, तो वो तो जो अटल है उतना ही मिलेगा। लेकिन आखिरत के बारे में, दुनिया की क्या कहते हैं कि आखिरत में अजर कमाने के बारे में, दीन की तरफ चलने के बारे में, जन्नत को हासिल करने के बारे में कहीं पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे मुकद्दर में जो लिख दिया है मैंने वही कुछ होके रहेगा, चाहे तुम जितने भी अमल करो ना करो, तुमको जन्नत मिलनी है तो मिलके रहेगी, तुमको दोज़ख मिलनी है तो मिलके रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने यकीनन मुकद्दर में लिख के तो रखा है कि हम जन्नती होंगे कि जहन्नमी होंगे, लेकिन हमको नहीं पता है कि हम जन्नती होंगे या जहन्नमी होंगे। और वो जो अल्लाह ने मशीआ अपने हमारे मुकद्दर में लिख के रखा है, वो उस अल्लाह के इल्म के मुताबिक है, जो अल्लाह ताला जानता है कि हम में से कौन इंसान जन्नत में जाने का अमल करेगा तो उनके लिए जन्नती होने का इल्म लिख के रखा है, और हम में से जो जहन्नम में जाने का अमल करेगा उसके लिए जहन्नम में जाने का, जहन्नमी होने का लिख के रखा है। तो हमको तो पता नहीं है कि हमारे बारे में अल्लाह ने क्या लिख के रखा है, तो हमको फिक्र करनी है आखिरत के बारे में। जिस तरीके से दुनिया में हम जो सो 2 घंटे 4 घंटे ज्यादा ड्यूटी कर कर ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा फिक्र हमको ये होनी चाहिए कि अगर हम फराइज अदा कर रहे हैं तो कुछ नवाफिल भी अदा कर लें ताकि हमको थोड़ा अजर ज्यादा मिले। और अगर हम फराइज में 2-4-5 वक्त की नमाजों को छोड़कर 2-3 वक्त की पढ़ रहे हैं तो कम से कम पूरे फराइज को अदा करने की कोशिश करें ताकि हम जो सो कोई गुनाह के मुर्तकिब ना हो रहे हों। तो इस तरीके से अगर हमसे फराइज हो रहे हैं तो नवाफिल के लिए फिक्र करें। मिसाल के तौर पे हमने जो सर रमजान के 30 रोजे बराबर हर साल रखते हैं, तो उसके बाद हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि शव्वाल के जो 6 रोजे हैं वो भी रख लें। फिर उसी तरीके से कोशिश करें कि महीने में जो 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 13, 14, 15 गालिबन जो है उसके बारे में उसके रख लें, वो भी रखते हैं। तो हम हफ्ते में एक दिन जो पीर के दिन का रोजा है, पीर और जुमेरात का, उसके रखने की कोशिश करें। तो इस तरीके से इंसान क्या करे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां करे, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का खुर्ब हासिल कर सके, जैसा हम दुनिया के मामले में करते हैं। तो हम दुनिया के मामले में तो फिक्र करते हैं, आखिरत के मामले में फिक्र नहीं करते, और दुनिया से जो हम जाते हैं इस हाल में कि हमारी फिक्र पूरी की पूरी फिक्र दुनिया और बस दुनिया ही थी। तो ऐसी सूरत में फिर अगर हम आखिरत में जाएंगे, अल्लाह के पास हाजिर होंगे और वहां पर हीले बहाने करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हमारे हीले बहाने कबूल होंगे? हरगिज़ नहीं कबूल होंगे। इसीलिए हमको चाहिए दुनिया के रहते हुए, दुनिया में जो अल्लाह ने हमको जिंदगी दे रखा है उसको गनीमत समझते हुए जो सो हम आखिरत की फिक्र करें, आखिरत के लिए कोशिश करते रहें। औ तक़ूलू, या तुम कहो, इन्नमा अशरका, इसके सिवा नहीं कि शिर्क किया था, आबाउना, हमारे बाप दादा, मिन क़ब्लु, इससे पहले, वो कुन्ना, और हम थे, ज़ुर्रियतन मिन बादिहिम, उनकी औलाद थे, उनके बाद हम उनकी औलाद में से थे। अफतुहलिकुना, क्या तू हमें हलाक कर देगा, बिमा फ़अलल मुब्तिलून,
जो किया था हम में से बातिल परस्त लोग, जो हमारे से बातिल, जो हमारे बाप दादाओं में जो गलत काम करने वाले थे, क्या उनके गलत काम पर हमको सजा देगा? देखें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहले तो कहा कि कल क़यामत में कहीं ऐसा ना हो कि तुम उज़र पेश करो कि हम गाफिल थे, या दूसरा उज़र ये हो कि या तुम ये कहो कि हम जो शिर्क करते थे वो तो हमारे बाप दादाओं में से उन लोगों ने पहले शिर्क किया था, हम तो उनकी सिर्फ औलाद में से थे, तो क्या तू हमको हलाक करेगा उन लोगों की गलतियों पर जो हमारे बाप दादा किए थे? यानी एक तरफ तो ये कि तुम अपने आप को बरी करने के लिए ये कहो कि हम गाफिल थे, अगर वो चाल नहीं चल पाएगी तो तुम अपने गुनाहों की और अपने गलतियों को थोप दो अपने बाप दादा के ऊपर, और तुम कहो कि भाई हमारे बाप दादा शिर्क करने वाले थे और हम उनकी औलाद में से थे, यानी हम उनकी नस्ल में से निकले, हम जो कुछ उनके से सीखा वो करते रहे, तो जो हमारे बाप दादा ने जो गुनाह किया उसके ऊपर क्या तो हमको सजा देगा, हमको पकड़ेगा? इस तरीके का उज़र पेश ना करो। मतलब क्या है कि जो जो पॉसिबल उज़र हो सकते थे उसकी नफी करते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा कोई उज़र कल क़यामत में ना चल सके, इसीलिए हमने तुम्हारी रूहों से तुमसे तो वाहिद ले चुके हैं कि हम अपने बारे में कि यकीनन अल्लाह ही तुम्हारा रब है और तुम जो सो जान चुके हो। तो बहरहाल यहाँ पर जो इंसान उज़र पेश कर सकता था उन तमाम की अल्लाह ने नफी कर दी। तो हमको अब एहसास होना चाहिए, हमको जो सो जैसे कहते ना कि इंसान जो बेबसी का इजहार हो सकता है कि हम किधर नहीं जा पाएंगे, यानी जो भी हीले बहाने कर सकते थे वो हीले बहानों के सारे रास्ते अल्लाह ने काट दिया है। तो अब जो सो हमारे पास कोई हीला बहाना नहीं चल सकेगा सिवाय इसके, यानी हमारे लिए कोई और चारेकार नहीं है सिवाय इसके कि हम दीन की तरफ पलट आए, दीन को सीखें, समझें और हक को जानकर उस पर अमल करें। हम हमारा ये उज़र और हमारी ये फिक्र कि हम जो है जितना कम इल्म हासिल करेंगे उतना हम जो है कम सवाल किए जाएंगे, ये सब खामख्याली है, ये शैतान के जो सो वसवसे है। बुरे मौलवियों ने हमको धोखे में डाल के इस तरीके की बातें कहा है, हरगिज़ ये जो सो नहीं चलेगा। जितना तुम इल्म सीखोगे तो तब जाके उतने अमाल को दुरुस्त कर सकते हैं, और जितना तुम इल्म सीख कर जितने भी अमाल करोगे उसी के मुताबिक, अगरचे के थोड़े अमल होंगे लेकिन सही इल्म हासिल कर करे होंगे तो उसके ऊपर अजर भी मिलेगा। यहीं पर रुकते हैं, और जैसे कि जो सो अनकरीब जो सो जिलहज्जा का महीना शुरू होने वाला है, और इस जिलहज्जा के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो पहले 10 दिन यानी पहले 9 दिन, खासतौर पे ईद का दिन 10 तारीख को ईद होती है, तो पहले 9 दिन में रोजे रखने की बड़ी फजीलत है। तो जो लोग रोजे रख सकते हैं उनको चाहिए कि रोजे रखें, और उसी तरीके से जो सो ये जिलहज्जा के 10 दिनों में यौम नहर के दिन यानी कुर्बानी के दिन सबसे बड़ी फजीलत वाली इबादत यह है कि अल्लाह के राह में खून बहाया जाए जानवर का, जिसके पास इस्तेताअत है वो कुर्बानी कर सकते हैं। और जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं जिलहिज्जा का चांद देखने से पहले उनको चाहिए, जब जिलहिज्जा का चांद देख लें तो बाल वगैरह काटने से रुक जाए, नाखून काटने से रुक जाए। और ये जो सो हुक्म खास तौर पे उस इंसान के लिए जिसके नाम से कुर्बानी दी जा रही है। मिसाल के तौर पे घर का जो फर्द बड़ा है उसके लिए जरूरी है कि वो जो सो बाल वगैरह ना काटे, उसके घर वाले जो है जिनके जो कुर्बानी में उनका नाम भी लिया जाता है लेकिन उनके ऊपर जरूरी लाजिम नहीं है, लेकिन अगर वो भी एहतमाम करते हैं कि जिलहिज्जा का चांद देखने से पहले रुक जाएं और 10 तारीख के दिन जब कुर्बानी हो जाए उसके बाद बाल वगैरह काटें, तो ये सुन्नत है, ये तरीका है, इसको अपनाएं। तो कल बहरहाल यानी कल जो सो मंगल का दिन है वो 29 तारीख होगी सऊदी अरब में, और जो सो इंडिया में 28वीं तारीख होगी। तो उसी तरीके से अगर कल शाम में चांद